we have to build our paradise again, recreate new dreams for the disillusioned youth as well as the disillusioned little birds. वरुण जमी अस्ता तो सबने रट रखा है, लेकिन पहली बार अब कश्मीर में सैफरान की फसलों की जगह लाल आग की लपटें तो नहीं हैं, लेकिन वुंडेड पैराडाइज तो है। जब मैं भारत के दूसरे हिस्से के विद्यार्थियों के साथ कश्मीर के बारे में चर्चा करता हूँ, तो वे भी कश्मीर के इतिहास के बारे में प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। कश्मीर की उस गौरवशाली परंपरा का कोई ज्ञान नहीं रहता, जहाँ हम कहते हैं कि भारत की शास्त्रों की सर्वश्रेष्ठ और सर्वसिद्ध परंपरा कश्मीर थी, शैव दर्शन का प्रमुख केंद्र था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ वही बात समझ में आती है, कश्मीर समस्या या कश्मीर प्रॉब्लम। एक मोटा-मोटी आंकड़ा हम सबने लगाया था कि 9,000 लोगों को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाएंगे, स्वरोजगार दे पाएंगे। और मुझे खुशी ये बताते हुए कि पिछले वर्ष 20,000 नौजवानों को हम सबने आर्थिक सहायता दी, और उसका जो दूसरा पक्ष है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4786 उसमें महिलाएं हैं। It is my great honor to welcome you all in today's program, book launch of the book Jammu and Kashmir, The Bounded Paradise, written by Sri Jawaharlal Kaul and has been published by Khama Publisher. So it's indeed a great pleasure in welcoming first our chief guest, Honorable Manoj Sinha ji, for gracing this occasion, accepting our invitation to launch the book. Thank you, sir. We are so feel honored and blessed with your presence. I also welcome Sri Jawaharlal Kaul and also thank him for agreeing to launch this book in this IGNCA new auditorium. Thank you, sir, and welcome to the program. Manoj Sinha ji, respected Ram Bahadur ji, Rajesh Shukla ji, and Dr. Ramesh Kaur. When such eminent persons are sitting on the dais who know about Jammu and Kashmir and the situations and the subject that I am dealing with, I need not waste your time, lot of time. I have to say a few things. I do not know how different this book is from the scores of books which have been written during recent years. I did not try to make it different. I have to say something to the people of my country, the people of Jammu and Kashmir, and the rest of the India. I was disturbed by many incidents and trends as the events started unfolding in Jammu and Kashmir. It was not my intention to shock my readers, but the tragic story of Jammu and Kashmir is such that one can hardly remain unconcerned and claim to be neutral. I was born in Skardu, Baltistan, and when the Bolsheviks in Russia forced out the Kazakhs from their homes, I was student of lower primary school in Muzaffarabad of undivided J&K. I met my first refugee. To the local, he was a Panah Guzin from Kazakhstan. At the end of the Great War, I was in Leh. My father, after his retirement in 47, moved to his ancestral village on the banks of Banasbal Lake in Kashmir Valley. With Indian independence came also the partition, followed by the invasion of Pakistan. We were hounded out of our village to seek shelter in Srinagar, and that is how I began my life of a poor refugee boy in muddy lanes of Srinagar. I could have written my first book on Kashmir in 1955 when I was in SP College, because the previous decade was full of events.
both in Kashmir politics as well as my life. My school, Lagdat High School, was dominated by the leftist teachers. My teachers liked me because, according to them, I had acquired an excellent street sense. Some of them were very close to the NC bosses and the Sheikh Mohammed Abdullah. The leftist orientation of National Conference was the handiwork of these leftist teachers who were mostly Kashmiri Pandits. In SP College, I was a class fellow of Tariq Abdullah, the second son of the Sheikh Mohammed Abdullah. He introduced me to his famous family. It was a time when Dr. Shama Prasad Mukherjee died in captivity and Abdullah was dismissed and arrested. There were lots of occasions when my friends tried to prompt me to make up my mind to start this onerous job of book writing on Kashmir, but I didn't feel enthusiastic. Some time back, the noted Kashmiri poet Rahman Rahi asked me a question which made me uneasy. Have you seen the cottage recently? He asked. I suddenly realized that I had not seen this bird for last several years. More distressing was the fact that I had not missed this little bird, which was such an important part of the ambience of Kashmir autumn. Rahman Rahi Sahab asked the same question to several other friends who were present at that time. Every one of them had to admit that famous cottage or the Central Asian swallow appears to have abandoned Kashmir. We notice the absence of swallow because it likes the company of humans, their courtyards, houses, gardens, etc. The question could be asked in a different way. How many birds have decided to stay away from their paradise? I did not want to pursue the question to the logical end because I was afraid that the answer could be much more shocking. A couple of years after, a young man from a South Kashmir village came to my residence in Delhi and forced me to see another facet of the reality in Kashmir. He appeared to be sad. When I asked him the reason, he said that his cousin was a drug addict and refused to be treated at any rehabilitation center. In this way, he was deliberately committing suicide in front of his old helpless parents. How many young men are in this pathetic state of mind? He said many, but the real answer was provided by a government document declaring that the drug addiction has already become an epidemic in state, and from a report of an expert claiming that what we see is only a tip of iceberg. According to the Department of Health and Medical Education, the studies conducted in recent years have shown alarming shifts in pattern of substance use in terms of rise in the number of female users, decreasing in age of the first users, increase in solvents, injectable opiates, as well as the increasing drug-related deaths. So this and that did it, broke my hesitation. I decided that I am not going to be simply a disinterested advisor only. So this book is not about the political Jammu and Kashmir only. It is about paradise, which is being pulled apart by its own children. The record tells us the state of forest, fauna and flora. We often talk about the receding snow line,
in connection with global warming, but forget to note the little alarming clocks, the bee lines, which tell us the health of our environment around our villages, along the banks of water bodies, gardens, and pastures. Is the gun culture responsible in any way, which has dominated the public life for last 4 decades? It's not coincidence only that the drug addiction in Kashmir Valley started to grow faster in late 80s, along with growth of the terrorist activities in the state. It has been found that many of the addicts have a short or a long history of violence. A disillusioned youth is the most vulnerable candidate for moving into the lap of the drug-induced hallucination. I realize that a communication gap is looming large overhead in Kashmir. It is surprising that when Persian language was replaced by Sanskrit, Kashmiri remained in the background. When Kashmir got Awami Raj, Kashmiri did not get the place of Persian. It was pushed into the corner by Urdu, a non-Kashmiri language. Today, most college-going students and most educated urban youth do not speak Kashmiri. These languages, there is language communication is either in English or Urdu. The native Kashmiri is an eternal vernacular. We often talk of Kashmiriyat. Can Kashmiriyat survive without Kashmiri? Without healthy nature? With the lakes fighting for their breath, youth drowning their hopelessness in the drug-induced slumber. I do not want to be pessimistic. One poet whispers in my ears even today that the birds will certainly come back to roost. But we have to build our paradise again, recreate new dreams for the disillusioned youth as well as the disillusioned little birds. Thank you. मेरे लिए कठिन है इस किताब पर कुछ कहना, और विशेष करके अब राय साहब अध्यक्षता कर रहे हों, खुद कौल साहब की किताब हो, बीच में माननीय उपराज्यपाल जी बैठे हों। मैं कहूंगा जोशी जी के बैठने से मैं डर रहा हूं, उनसे मुझे साहस मिला है। और सामने भी मैं देख रहा हूं कश्मीर के बारे में गंभीर रूप से अध्ययन करने वाले और काम करने वाले लोग इस किताब के बारे में सुनने के लिए आए हुए हैं। दूसरी बात, डर क्यों रहा हूं ये तो स्पष्ट करना आवश्यक है। कश्मीर के बारे में जितना कुछ मैं जानता हूं वो सब आदरणीय जवाहरलाल कौल जी का बताया हुआ है। कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर मुझे इनके संरक्षण में जाने का और प्रत्यक्षतः अनुभव करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कश्मीर के सुदूर गिलगिट के हिस्से से लेकर के और जम्मू के क्षेत्र के छोर तक सभी स्थानों के साथ प्रत्यक्षतः अनुभव रखने वाले बदलते हुए कश्मीर को, अब वो बदलाव किस धारा में था वो तो खुद जवाहरलाल कौल जी ने बताया है। बदलते हुए कश्मीर को एक बालक से किशोर और युवा हो रहे
छात्र के रूप में अनुभव है, एक कश्मीरी के रूप में घर का अनुभव है, एक पत्रकार के रूप में तटस्थता रखते हुए उसको समझने की कोशिश करने वाला अनुभव ही है। उन्होंने खुद बताया भी कि वो जो पढ़ रहे थे तो कश्मीर के बारे में जो बताया जा रहा था उन्हें, उसको बताने वाले कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन के शिक्षक थे। वो जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि परिस्थितियां बदली थी, उसमें कौन कौन से कारक काम कर रहे थे। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है, एक तो कश्मीर पर यह अलग किस्म की किताब है, जिसमें कश्मीर की समस्या को जो अब रही नहीं लेकिन इतिहास में जो थी, उस समस्या को केवल राजनीति के नजरिए से देखने की कोशिश नहीं की गई है। तो उससे अलग केवल उपासना पंथों के युद्ध के रूप में भी देखने की कोशिश नहीं की। ये सब होते हुए भी इसको एक चैप्टर जो गिलगिट गेम के नाम से इस किताब में है, किस प्रकार से गिलगिट का वो स्थान पूरी दुनिया के जियो स्ट्रेटेजिकल पॉलिसीज के लिए, जियो स्ट्रेटेजी के लिए, जियो पॉलिटिकल स्टडीज के लिए और सामरिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान था, और उस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय चौकीदारी के नाम पर मजबूत ताकतों का बना रहना सुनिश्चित हो जाए, वह अनदेखा हिस्सा भी इस किताब में पहली बार ठीक से आया है। इस किताब में पहली बार मैं कहूंगा कि इसमें जो अनुभव है, ये किताब लिखी जरूर अगस्त 19 के बाद गई है, लेकिन इस किताब के जो अनुभव हैं वो अगस्त 19 के पूर्व के हैं। इस किताब में जो अनुभव अगस्त 19 के पूर्व हैं, उसके आधार पर अगस्त 19 के बाद का जो एक सकारात्मक दृश्य बनता है, एक संवेदनशील कश्मीरी, एक संवेदनशील सजग जागरूक कश्मीरी विषयों का अध्येता किस रूप में देखता है, किस रूप में सकारात्मकता उसको दिखाई दे रही है, इसको प्रस्तुत करती हुई किताब है। ये किताब इट्स व्यू अबाउट द कश्मीर थ्रू एजेस। ये किताब अपनी शुरुआत में ही, अभी जवाहरलाल कौल जी से इसके प्रीफेस के बारे में जोशी जी कह रहे थे कि यह अद्भुत तरीके से लिखी गई है, क्योंकि इसमें कागज पर लिखी इबारतें कम लिखी गई हैं, इसमें कुछ भोगा हुआ यथार्थ है, कुछ अनुभूत अंतर सामूहिक, अंतर वैयक्तिक और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो बने थे कश्मीर में, उन सब के साथ हुए संवाद और उससे उपजी हुई समझ लिखी गई है। यह किताब किसी खास नजरिए को प्रस्तुत करने के लिए नहीं लिखी गई है, अपितु यह किताब कश्मीर और कश्मीरियत को, युग युग का जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, जो शारदा क्षेत्र से प्रारंभ होता हुआ जम्मू कश्मीर के रूप में, जो सप्त सिंधु के क्षेत्र से झेलम, चिनाब और सिंध के जम्मू कश्मीर के रूप में, और फिर झेलम और चिनाब के जम्मू कश्मीर के रूप में बदलता रहा है, उस बदल के पीछे का जो अनुभव है
उसके आधार पर है। मैं कहूंगा कि किताब को मैंने सरसरी निगाह से कुछ घंटे पहले देखा है, पर जब मैं कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बताया था कि मुझे आदरणीय कौल जी ने कश्मीर पढ़ाया बहुत है। कुछ करने की, कश्मीर में काम करने की इच्छा थी तो जानना जरूरी था। जानने के लिए एक आदर्श शिक्षक के रूप में मुझे पढ़ाया है। तो जो पढ़ाया है उसमें बहुत सी बातें इसमें मुझे झांकती हुई दिखाई दे रही हैं। इसे मुझे झांकती हुई दिखाई दे रही है कि दुनिया में और भारत में विशेष रूप से एक शब्द प्रयोग में आता था, कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या है और उसका समाधान करना है। कश्मीर में समस्या और उसका समाधान करना है। यह किताब इसके बजाय कश्मीर समस्या नहीं है, कश्मीर का समाधान नहीं करना है, अपितु कश्मीर की केंद्रीय भूमिका के आधार पर जो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप की समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। इस दृष्टि से इसका अंतिम अध्याय एक बड़ी आशा की ओर हमको लेकर के जाता है। इस किताब को और ध्यान से देखें तो ये पहली किताब है जो कश्मीर में पंथ और राजनीति की समस्याओं का 20वीं शताब्दी में जो स्वरूप सामने आता है उसको रखती है। ये किताब बड़े बेबाकी से खिलाफत मूवमेंट और उसके असर का मूल्यांकन, कश्मीर पर क्या आता है उसका मूल्यांकन तो एक तरफ करती ही है, दूसरी तरफ कथित रूप से जो इस्लाम के अंदर रिफॉर्मेटिव मूवमेंट चले थे उन्होंने परंपरागत कश्मीरी मुसलमानों के सोच से विरुद्ध किस प्रकार से कश्मीर को एकेडमिक एरेना में भी और पॉलिटिकल एरेना में भी स्थापित करने के यत्न किए थे। मजेदार बात है कि वो मदरसों के पढ़े हुए लोग नहीं थे। मजेदार बात है कि वो उर्दू, पंजाबी, डोंगरी और कसीरी में पढ़े हुए लोग नहीं थे। वो सब वो थे जिन्होंने, जिसकी चर्चा कौल जी ने की थी कि हमारे टीचर कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन के थे, ये सब उसी प्रकार के प्राथमिक स्तर पर मिशनरी स्कूलों से, अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े थे और बाद की पढ़ाई इनकी दुनिया में जो बदल हो रही थी, बोल्शेविक क्रांति के बाद जो तेज हुई थी उसके आलोक में हुई थी और उसके परिणाम भी किस प्रकार से कश्मीर को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस पर बड़ी बेपाक टिप्पणी भी है और बहुत गंभीरता से अनुसंधान के साथ उस काल के समाचार पत्रों को दिन प्रतिदिन से उनकी फाइल्स को देख करके अपनी याददाश्त और उन फाइलों के बीच संबंध को स्थापित करते हुए लिखी गई किताब है। एक तरह से मैं जब कह रहा था यह जीवना अनुभव है कश्मीर के बारे में जवाहरलाल कौल जी का, तो दूसरी तरफ यह उनके जीवन भर के अध्ययन और अनुसंधान का प्रतिफल भी दिखाई दे रहा है। किताब बहुत बड़ी नहीं है लेकिन किताब के अर्थ बहुत गंभीर हैं। तुलसी की पंक्ति अर्थ अमित आखर अति थोरे, इसको देखना हो तो देखा जा सकता है। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे जैसे अध्येता के लिए या किसी भी कश्मीर के बारे में आने वाले दिनों में अध्ययन करने वाले के लिए जो सहजता उत्पन्न करने वाली बात है, इसका अपेंडिक्स है जिसमें 21 ऐसे डॉक्यूमेंट संग्रहित किए गए हैं जो किसी भी अध्येता को सहजता से तो मिलता नहीं है, मिलता भी है तो ध्यान नहीं जाता है। जैसे जस्टिस कैलाशनाथ काटजू ने
नेहरू को कश्मीर के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पत्र लिखा। अब आर्थिक स्थिति कश्मीर में जो जिस तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिस प्रकार से सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, उसके बीच कश्मीर की आर्थिक स्थिति का इन पर क्या असर पड़ रहा है या इनका आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है, सामान्य तौर पर हम अध्येताओं के समझ के बाहर होता है कश्मीर के बारे में जो गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन यह जब एक अपेंडिक्स के रूप में आता है तो ध्यान जा रहा है कि कश्मीर की आर्थिक स्थिति, बदलती वर्तमान आर्थिक स्थिति और पीछे की कश्मीर की आर्थिक स्थिति को 1835 से लेकर के 1947 तक के कश्मीर की आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो एक दृश्य कश्मीर में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, इसके कारणों को साफ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक का शीर्षक तो सबको आकर्षित करने वाला ही है, वरुण न जमी अस्त तो सबने रट रखा है। लेकिन पहली बार अब कश्मीर में सैफरान की फसलों की जगह लाल आग की लपटें तो नहीं हैं, लेकिन वुंडेड पैराडाइज तो है, घायल कश्मीर तो है। इस पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। इस पर मरहम या इसका लेप अब वो कौन सा होगा? वो कश्मीर के वादियों की औषधियों से बना हुआ लेप होगा या एल्केमिस्टों के चमत्कार से बना हुआ कोई मॉडर्न फार्मेसी का लेप होगा? यह प्रश्न खड़ा है। यह बहुत सारी चीजों को खोलता है। कश्मीर के मॉडर्नाइजेशन का प्रश्न नहीं है। कश्मीर भारत में स्वतंत्रता के पूर्व ही सर्वाधिक आधुनिक राज्यों में और आधुनिकता को स्वीकृति देने वाले राष्ट्र रहा है। उपासना पंथों का संघर्ष भी कश्मीर का मूल प्रश्न नहीं है। वह राजनीति के साथ जुड़ करके किस रूप में आता है। अन्यथा गैर इस्लामिक देशों में गैर इस्लामिक घोषित किया गया अहमदिया पंथ कश्मीर के अलगाव का मूल कारण बनेगा, यह सोचा नहीं जा सकता था। जो भारतीय धरती पर उपजा हुआ एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट था, तो इसके उपासना पंथ से परे जो राजनीतिक कारण थे और उससे परे एक मॉडर्न अप्रोच आई थी। टर्की में खिलाफत के गिरने के बाद, भारत में उत्पन्न हुए खिलाफत मूवमेंट के बाद कि दुनिया में खिलाफत स्थापित की जा सकती है। दुनिया में खिलाफत स्थापित करनी है तो हिंदुस्तान के मुसलमान इसमें सर्वाधिक उपयोगी हो सकते हैं। उपयोगी हो सकते हैं तो गिलगिट उसका केंद्र बन सकता है, जो इधर एशिया और उधर यूरोप दोनों को नियंत्रित करने वाली भूमिका में होगा। इन सब चीजों को काव्यमय भाषा में तथ्यों के साथ कश्मीर की अनादि संस्कृति में कश्मीर भूमि के उदय, कश्यप की संततियों के द्वारा सभ्यता का संपूर्ण भारत में और विश्व में प्रसार, इनके आलोक में आज तक देखने वाली एक परिपूर्ण किताब है। मैं अब अधिक समय न लेते हुए इसके बारे में सिर्फ यह अनुरोध करके बात को पूरा करूंगा, क्योंकि हम सब लोग इस किताब के साथ ही निश्चित रूप से मनोज जी को सुनना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो वुंडेड पैराडाइज है, इस वुंडेड पैराडाइज पर मलहम लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस मलहम की तासीर कैसी है, उसके परिणाम कैसे आ रहे हैं, इसकी जानकारी हम सब जरूर चाहते होंगे। मैं सिर्फ इस बात को खत्म करूंगा कि राजतरंगिणी जो कश्मीर में का इतिहास है, जिसके 3 खंड प्राप्त होते हैं भिन्न भिन्न कालखंडों में लिखे हुए, उन सब को समेटते हो और उसके बाद जो राजतरंगिणी की परंपरा में शुद्ध इतिहास को न लिखना
और शुद्ध इतिहास को काव्य में तो कतई नहीं लिखना, ऐसा लिखना कि वो सिर्फ दर्द पैदा करे, सिर्फ घाव पैदा करे। इस प्रकार का इतिहास लिखने की जो प्रवृत्ति थी, उसको हटाते हुए कश्मीर के बारे में एक उसके घावों के कारणों की चर्चा करते हुए उन घावों का और अधिक दर्द दिए बिना इलाज कैसे हो सकता है, इसको प्रस्तुत करती हुई इस किताब को मैं अपने लिए इस पर कुछ बोलने का जो अवसर मिला है, इसको सौभाग्य मानता हूं। अब आप सोच लीजिए कि विषय वो हो जिसमें गुरु ने किताब लिखी हो और किसी शिष्य को उस पर कुछ बातें कहनी हो, तो उसके लिए कहने के लिए कोई स्थान नहीं होता, और भारत की परंपरा में नहीं है। वो प्लेटोनिक और एरिस्टोटेलियन मेथड जो ग्रीक सभ्यता में उपजा था, उसमें तो हो सकता है, लेकिन भारतीय परंपरा में नहीं है। और वैसे इसीलिए राजतरंगिणी के परंपरा में इस किताब को देखते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर, इस सभा के माननीय अध्यक्ष, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यासी अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, इस पुस्तक के सम्माननीय लेखक जवाहरलाल कौल जी, अभी हमने जिनका वक्तव्य सुना ऐसे मेरे मित्र महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे सहयोगी प्रोफेसर रमेश गौर जी, सभागार में उपस्थित माननीय सांसद, सभी सम्माननीय विद्वान देवियों और सज्जनों। पुस्तक अंग्रेजी में है लेकिन बात हिंदी में कह रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और बात हिंदी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अभी जवाहरलाल कौल साहब से भी इस बात को कहा कि जो प्रीफेस है इस किताब का, जो आमुख है इस किताब का, वो अपने आप में एक ऐसा पक्ष है, एक ऐसा लेखन है जो पूरी तरह से भावनाओं का ज्वार है जो आपके सामने उड़ेला जाता है। और उन्होंने इसका शीर्षक लिखा है बिकॉज आई लिव्ड थ्रू इट। और ये जो आई लिव्ड थ्रू इट है, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझाने की कोशिश करती है कि क्यों 80 वर्ष की उम्र पार करने के बाद जवाहरलाल कौल जी को एक बार फिर से कश्मीर के बारे में लिखने की प्रेरणा हुई, जबकि इतने सारे लोग कश्मीर पर लिख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वे कश्मीर से आते हैं, 1937 में उनका जन्म होता है। हम सभी जानते हैं कि वे पत्रकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं और उनके लिए लिखने के लिए बहुत विषय थे, लेकिन उन्होंने क्यों लिखा, और ये जो क्यों लिखा है इसके कारणों की जब आप पड़ताल करते हैं तब समझ में आता है कि वो जो एक बंधन है। 3 वर्ष पहले उन्हें कोई एक युवा मिलता है तो उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है अपने भाई की जो ड्रग एडिक्ट हो गया है, और उससे उनके मन में जो टीस उभरती है कि पूरे कश्मीर में युवाओं की स्थिति क्या होगी, और वो उन्हें उद्वेलित करती है और एक बार फिर से उन्हें उस कश्मीर में ले जाने की कोशिश करती है जिस कश्मीर को उन्होंने एक पत्रकार की दृष्टि से, एक विचारक की दृष्टि से कहीं दूर से देखा था। उसके अंदर दोबारा से प्रवेश करके देखने की प्रेरणा उन्हें वहां से मिलती है। और दरअसल यही एक वो पक्ष है जो इसे सिर्फ कश्मीर का कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं बनाता। ये कोई कश्मीर की पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, ये कोई कश्मीर की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री नहीं है, ये कश्मीर की सोशोलॉजिकल हिस्ट्री भी नहीं है, ये कश्मीर की इमोशनल हिस्ट्री है, एक भावनात्मक दस्तावेज है कश्मीर का। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। और इसलिए वे सिर्फ कश्मीर के इतिहास पर बात करते हैं, कश्मीर की परंपरा पर बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कश्मीर के पर्यावरण पर भी बात करते हैं, कश्मीर के पर्यावरण की चिंता पर भी बात करते हैं, उन चिड़ियों पर भी बात करते हैं जो पता नहीं कश्मीर लौट के आएगी कि नहीं आएंगी। और ये सारे प्रश्न बहुत गंभीर, उद्वेलित करने वाले प्रश्न हैं, क्योंकि जब हम इसे कहते हैं कि ये धरती का स्वर्ग है, तो स्वर्ग को कहां कहां से कैसे कैसे जख्म मिल रहे हैं और कैसे कैसे वो आहत हो रहा है, इन सारी बातों की पड़ताल की जाना बहुत जरूरी है। और कौल साहब ने अपने उस धर्म को निभाया है जब उन्होंने अपने आमुख में भी इन पंक्तियों को कहा है, जो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र,
जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। उन्होंने अपने आमुख में भी लिखा है इस बात को, और इसलिए उनको लगा कि अब मुझे तटस्थ रहने से, शांत रहने से, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। और लिखना इसलिए पड़ेगा कि मुझे कश्मीर की जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसे कहीं ना कहीं उद्वेलित करना है, उसे कहीं ना कहीं प्रेरित करना है, उसे उनका गौरवशाली इतिहास भी बताना है, उनका थोड़ा सा आहत और क्षत विक्षत वर्तमान भी बताना है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें उनके सुनहरे भविष्य की ओर भी आकृष्ट करना है, क्योंकि वही पीढ़ी है जो आगे जाकर आने वाले समय में कश्मीर का इतिहास लिखने वाली है। और इसलिए उन्होंने जो 16वां और 17वां जो अध्याय लिखा है, 16वां अध्याय है लेट अस रीबिल्ड अवर पैराडाइज, आओ हम फिर से अपने स्वर्ग की पुनर्रचना करें। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। आमतौर पर ऐसी किताबें इतिहास और वर्तमान के दोषारोपण पर जाकर रुक जाती हैं। भविष्य की चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं पर कोई चर्चा नहीं करता, और विशेषकर उन संभावनाओं और उन चुनौतियों पर चर्चा नहीं करता जो युवाओं से जुड़ी हुई हो। कौल साहब युवाओं में आशा का केंद्र देख रहे हैं और इसीलिए उनको प्रेरित करते हैं। और उसके बाद 17वां अध्याय पोस्ट स्क्रिप्ट का लिखते हैं। ये दोनों अध्याय बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने अपने आमुख में भी इस बात का आग्रह किया है कि आप इसे अलग से भी पढ़िए, सिर्फ किताब के बरक्स पूरे पढ़ने की बजाय अलग से भी पढ़िए। और मुझे लगता है कि वो कौल साहब की जो एक विचारक की दृष्टि है, पत्रकार से अलहदा जो एक विचारक की दृष्टि है, एक भावनात्मक पुरुष की जो दृष्टि है, जो कश्मीर को एक भावनात्मक पुरुष के नजरिए से देख रही है, वो दृष्टि उन दोनों अध्यायों में सामने आती है। इसलिए ये जो दस्तावेज है, ये अपने आप में एक बहुत अलग तरह का दस्तावेज है। कश्मीर पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और भी किताबें लगातार लिखी जाएंगी। हम सब जानते रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में नई अंगड़ाइयां आ रही हैं। एक विकास की, एक उत्साह की, एक उमंग की नई लहर कश्मीर में है। लेकिन वो उत्साह, वो उमंग, वो नई लहर तभी कामयाब होगी जब ये संचार युवाओं में हम देख पाएंगे। और इसलिए इस किताब के इन अध्यायों को पूरी किताब के बरक्स देखना बहुत जरूरी है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ साल पहले कश्मीर 2-3 बार जाने का अवसर मिला, विशेषकर श्रीनगर विश्वविद्यालय जाने का अवसर मिला। और वहां जब मैंने देखा, युवाओं के साथ चर्चा की, तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारी बातें जो उनके मुंह से कही जानी चाहिए वो निकल नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं निकल पा रही हैं, इसके कई कारण हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ा कारण ये भी है कि हम उनके साथ कितना संवाद बना पाते हैं। इन संवादों को भी बनाने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब मैं भारत के दूसरे हिस्से के विद्यार्थियों के साथ कश्मीर के बारे में चर्चा करता हूं, तो वे भी कश्मीर के इतिहास के बारे में प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। उन्हें कश्मीर की उस गौरवशाली परंपरा का कोई ज्ञान नहीं रहता, जहां हम कहते हैं कि भारत की शास्त्रों की सर्वश्रेष्ठ और सर्वसिद्ध परंपरा कश्मीर थी, शैव दर्शन का प्रमुख केंद्र था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें सिर्फ वही बात समझ में आती है जो रजनीश जी कह रहे थे, कश्मीर समस्या या कश्मीर प्रॉब्लम। तो कश्मीर के बारे में पूरे देश में भी जानकारी इस तरह से फैलाई जाना, युवाओं के बीच में फैलाई जाना, युवाओं को कश्मीर के बारे में सारी जानकारी विस्तार से दी जाना भी बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि ये किताब उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब मिलकर इस किताब को अलग अलग स्तरों पर महसूस करें, ये मेरा आग्रह है। क्योंकि गौल साहब जब उम्र के इस दौर में 85वें वर्ष में इस किताब को लेकर उत्साहित हैं, और वे इसलिए उत्साहित हैं ताकि उनका संदेश युवाओं तक पहुंचे। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह कहा है कि यह संदेश युवाओं तक पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि जब उम्र के इस दौर में उनका उत्साह युवाओं का सा उत्साह है, युवाओं को जोड़ने का उत्साह है, तो हम सब तो कम से कम इतने सक्षम हैं ही कि इस किताब के माध्यम से दिए गए संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। जो संदर्भ की बात रजनीश जी ने कही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसका अपेंडिक्स है, और उसमें ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं, जैसे शेख अब्दुल्ला ने जो महाराजा से माफी मांगी 1947 में, वो पत्र इसमें दस्तावेज में है, या जो नेहरू जी ने महाराजा हरि सिंह को पत्र लिखा वो इसके दस्तावेज में है, या डॉक्टर कर्ण सिंह ने जो पत्र नेहरू जी को लिखा वो इसके दस्तावेज में है। ये सारे
हो सकता है कहीं ना कहीं कोई खोज करेगा तो मिल जाएंगे, लेकिन इस किताब में सहज रूप से मिलने से एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको उन संदर्भों की क्रोनोलॉजी लगाने में बहुत आसानी होती है। और बहुत सारे जो मिसनॉमर्स हैं, जो सारे मिथक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं देखने समझने में बहुत आसानी मिलती है। जैसे बहुत छोटी बात कौल साहब ने, बहुत बारीक बात, छोटी मतलब बहुत बारीक बात, कि कश्मीर की जो लिपि है, जो भाषा है, वो वहां से क्यों लुप्त हो रही, क्योंकि युवाओं को उससे परिचय ही नहीं कराया गया, युवाओं का उससे तारुफ ही नहीं, युवाओं की उस भाषा में बातचीत ही नहीं। तो उस भाषा में लिखा गया, रचा गया सारा साहित्य, वो स्क्रिप्ट, वो रचना करने वाले, उन लोगों के लिए उत्साह की भूमि कौन तैयार करे, कैसे तैयार करें, ये बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आती हैं। या केसर की बात कही है, केसर की खेती होती है, केसर के बारे में हम सब कितने जानते हैं, कितने नहीं जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कश्मीर की लोक कलाएं हैं, वहां की पारंपरिक कलाएं हैं, वहां के शिल्प है, इन सब बातों को मिलाकर वो स्वर्ग बना है। तो एक संपूर्ण पुस्तक अपने आप में है, और ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक इस दौर की मैं मानता हूं। खासकर कोरोना की बीमारी, गंभीर बीमारी से उबरने के बाद कौल साहब ने फिर से उत्साह में आकर इस किताब की एक तरह से पूर्णता की पुस्तक प्रकाशित हुई। हम सब कौल साहब को बहुत बधाई देते हैं। वे शतायुषी हों और इसी तरह निरंतर हम सब लोगों को अपने प्रेरणास्पद लेखन से निरंतर प्रेरित करते रहें, उत्साहित करते रहें। यही बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एनसीए के अध्यक्ष श्रद्धेय राम बहादुर राय जी, इस पुस्तक को जिन्होंने लिखा है, आदरणीय जवाहरलाल कौल जी, प्रोफेसर रजनी शुक्ला जी, प्रोफेसर रमेश सी गौड़ जी, डॉक्टर सचिदानंद जोशी जी, सभागार में उपस्थित हमारे मित्र लल्लू सिंह जी, आदरणीय राजकुमार भाटिया जी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, पिछले साल 7 अगस्त को मुझे जम्मू कश्मीर जाने का अवसर मिला था। तो मोटे तौर पर 1 महीना से थोड़ा ज्यादा दिन हो गए, 1 साल से थोड़ा ज्यादा दिन हो गए। इस दौर में कई किताबें पढ़ी हैं जो कश्मीर पर लिखी गई, लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य रूप से अगर अधिकांश किताबों को आप देखेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, आशा है सब लोग समझेंगे, तो किसी एक व्यक्ति से उस किताब की शुरुआत होती है जो काम कौल साहब ने नहीं किया है। और कश्यप ऋषि की मध्यस्थता में नागाज और जलोद्भव के बीच हुए इंटर ट्राइबल अकॉर्ड का जिक्र तो मुझे किसी किताब में नहीं मिला, और इसलिए जम्मू कश्मीर द वुंडेड पैराडाइज पढ़ते हुए मन में प्रसन्नता का अनुभव भी था। और मुझे लगा कि पहली बार किसी ने नींव में दबे हुए किसी चीज को निकाल करके एक नई शुरुआत की है। जैसे न मैं अध्येता हूं न शोध करता हूं, अभी तक जो लोग बोल रहे थे वो अध्येता है, लेकिन जो मोटे तौर पर मुझे बात समझ में आ रही थी उसको मैं जिक्र करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि लेखकों की कलम से हालांकि सृष्टि में कुछ बचता नहीं है, लेकिन जितनी भी जम्मू कश्मीर के इतिहास पर 2, 4, 5 किताबों को मैंने पढ़ा है, उसके साथ वहां के भूगोल, वहां के विराट का वास्तविक अनुभव मुझे लगता है इसी किताब में हुआ है। और कौल साहब ने जो वादा किया था उसे निभाया भी है। प्रस्तावना जिन लोगों ने पढ़ी है, मुझे लगता है कि प्रस्तावना पढ़ने के बाद और हरार पार्टी के संबंध में कौल साहब ने लिखा है कि कश्मीर पर रिसर्च करने वालों की नजर में कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज छूट गए थे। मुझे लगता है कि उन दस्तावेजों के अलावा इतिहास के कुछ अनमोल नगीने भी थे जो वितस्ता के किनारों पर ही पड़े रह गए और इतिहासकारों की नजर उन पर नहीं पड़ सकी, जिन पर नजर कौल साहब ने डाली। और आज मैं कह सकता हूं कि कौल साहब ने अपनी किताब में जम्मू कश्मीर के ऐसे बहुत सारे नगीने चुन करके दुनिया के सामने पहली बार पेश किए हैं जो इतिहास को बदलने की क्षमता रखते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि पाठकों के सामने एक नए प्रकार का दृष्टिकोण
प्रस्तुत कर सकें। नगीने की परख के बावजूद मैं कौल साहब को जौहरी नहीं कहूंगा, क्योंकि जौहरी शब्द मुझे लगता है उनके लिए छोटा पड़ेगा। एक पुरानी कहावत आप में से अधिकांश लोग सुने होंगे, उस चरवाहे वाली, कि जंगल में जा रहा था, एक हीरा मिल गया उसे, चमक देखकर उसने हीरा उठाया और अपनी पगड़ी में खोस लिया। उस बेचारे को पता नहीं था कि ये हीरा क्या चीज है। मस्त होकर के अपना जो काम करता था गाय चराने का वो कर रहा था। रास्ते से एक जौहरी गुजर रहा था और उसने चमकते हुए हीरो को देखा तो वो तो हैरान था कि इतना बड़ा हीरा उसने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। चरवाहे से कहा उसने कि भाई क्या इस पत्थर को बेचोगे? तो चरवाहे ने बड़े सामान्य ढंग से एक बात कही कि ये चरवाहा अपनी धुन में मगन था। तो उसने कहा कि पैसे की बात मत करिए, क्योंकि ये पत्थर मुझे बड़ा प्यारा है और मैं इसे पैसे में नहीं बेच पाऊंगा। उस समय जौहरी ने कहा कि साहब 10 रुपया ले लो। 10 रुपये का वजूद बहुत बड़ा था। अंत में उसने कहा कि अगर आपको पसंद है तो मुफ्त में मैं दे देता हूं, आप ले लीजिए इसको, लेकिन एक वचन आपको देना होगा कि इसे आप दूसरे को नहीं देंगे और संभाल कर रखेंगे। ये पत्थर बहुत सुंदर है और मुझे अत्यंत प्रिय है। जौहरी बड़ा खुश हुआ और हीरा रखा और वहां से तेजी से भागा, क्योंकि उसे डर ये लग रहा था कि कहीं चरवाहे का मन बदल गया तो फिर ये जो अमूल्य निधि हमको मिली है ये शायद वापस चली जाएगी। जब वो दौड़ रहा था तो उसके जेब में वो पत्थर रोने लगा और उसने देखा कि हीरा रो रहा है। वो रुक गया और हीरे से पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो जौहरी हूं, तुम्हारा असली पारखी हूं, और गंवार चरवाहा तो तुम्हें जानता भी नहीं था, तुम्हारी कदर भी नहीं समझता था। अब हीरा और जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ये चरवाहा मेरी कीमत तो नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे जरूर जानता था। वो जौहरी तो नहीं था, लेकिन वो प्रेमी जरूर था, और प्रेमी जैसे नगीने पहचान सकता है, मुझे लगता है कि वो जौहरी नहीं पहचान सकता है। तो मुझे लगता है कौल साहब ने जिस प्रेम से जम्मू कश्मीर को अपने शब्दों से छुआ है, वह ये स्कॉलर या एकेडमिक के क्षेत्र में काम करने वाले लोग शायद नहीं कर पाएंगे। कौल साहब की तरह बहुत से इतिहासकारों की जड़ें जम्मू कश्मीर से जुड़ी हैं। बहुत से लोगों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर 900 पन्नों की भी किताब लिखी है, लेकिन ये 373 पन्ने में कौल साहब ने तारीख से लेकर के वर्तमान और भविष्य को जिस प्रकार उकेरा है, उसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपकी किताब बेस्ट सेलर नहीं है, बल्कि ये वो हीरा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, और मैं सबसे आग्रह करूंगा और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी से भी लोगों को कहना पड़ेगा कि इस किताब को जरूर पढ़िए। मैं जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। मुझे लगता है कि वो केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हमारे देश के या हिंदुस्तान की धमनियों में बहने वाला लहू है। सही है कि जम्मू कश्मीर प्रेम और ऊर्जा से भरा हुआ बुद्ध क्षेत्र है, जिसे तारीख में अलग अलग किरदारों ने कई तरीकों से आहत किया है, लेकिन ऊर्जा की तरंगों को कभी मिटाया नहीं जा सकता। और कौल साहब अपनी किताब में लिखते हैं, और ये उम्मीद की भी बात है, we shall retrace our steps from the brink and the birds will return home to roost. Call साहब, the birds will certainly return home, and let me assure you, Jammu Kashmir is on the path of regaining the lost glory, because it is not just piece of land, but our consciousness, our way of life, and an integral part of our existence, which still believe in universality of individual beings. For the first time in the history of the Jammu Kashmir, the real mantra
that is called Siddha Mantra of Bharat, which you have mentioned in your 14th chapter, is being realized by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. मैं आपके सभी चैप्टर के बारे में बात करूं, मुझे लगता है कि मेरे लिए भी उचित नहीं है, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनकी तृष्णा खत्म करने में मैं सहायक बनूं तो ये अपराध मैं कर नहीं सकता। लेकिन मुझे ललदेद का कहा वह एक वाक्य याद है जिसे मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। इक क्या आसित इक्युत रंग गोम चंग गोम चटित हुतानी दगे। मतलब समझाते हुए बिमला रैना जी ने लिखा है कि क्या जबरदस्त परिवर्तन आया है कि उसने मुझे भी अंदर से बदल दिया और अहनत नाद ने मेरे दुखों को हर के मेरे अंतरकरण के दरवाजे भी खोल दिए। मैं किताब की ज्यादा चर्चा न करके थोड़ा कुछ और बातें भी करना चाहूंगा। सालों से जम्मू कश्मीर में मैं मानता हूं कि बहुत से दरवाजे बंद पड़े थे, जिसे मैं कह सकता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास, उम्मीद और विकास का सूत्र जम्मू कश्मीर के जन जन तक पहुंचाने की कोशिश शुरू की है और एक अच्छे जीवन की सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाया जा सके इसका प्रबंध करने की कोशिश की है। थॉमस फ्रीडमैन की एक किताब है थैंक यू फॉर बीइंग लेट, और उसमें उन्होंने लीडरशिप पर एक लाइन लिखी है, देयर इज नो बेटर वे टू चेंज ए कल्चर देन हैविंग अ लीडर who surprises supporters and opponents by rising above his history, his constituencies, and his pollsters, and just doing the right things for his country. मुझे लगता है कि वही काम जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने करने का एक फैसला किया। तारीख में हुए अत्याचारों के खिलाफ जिस शिद्दत से उन्होंने फैसले लिए, मैं मानता हूं कि आने वाले भारतवर्ष के इतिहास में वो निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अभी कल जब मैं चल रहा था, आने के पहले एक हमने पोर्टल लॉन्च किया जिसके जरिए हमने एक सुनिश्चित प्रबंध किया है कि कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं, जो देश या दुनिया के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप सब जानते हैं, जिक्र भी आया है किताब में भी, 89-90 के दौर में हजारों असहाय परिवार रातों रात बेघर हो गए। उनकी चल अचल संपत्ति जिस अवैध ढंग से चली गई, दबाव में औने पौने दाम में लोगों ने खरीद लिया, उन परिवारों को मालिकाना हक दिलाने के लिए ये पोर्टल उनकी मदद करेगा और कानूनन एक रास्ता बनाया गया है। और मैं कहना चाहूंगा एक्ट, कौल साहब जानते हैं, 1997 में बना था, लेकिन वास्तविक अधिकार जो दिया जाना चाहिए था उस एक्ट में वो नहीं दिया गया था। 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम सबने फैसला किया और 15 अगस्त को वहां के लोगों से बात करते हुए मैंने बात कही थी। कल वो पोर्टल लॉन्च हुआ, सॉफ्ट लॉन्च, और कल जो फॉर्मल लॉन्च था, इसके दौरान मोटे तौर पर 7-8 दिनों में 750 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। और इस पोर्टल के लिंक को जब 2 हफ्ते करीब हमने लाइव किया था, 745, मैं संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जो करना आवश्यक है वो करूंगा जरूर, राजनीतिक बात न की जाए इसकी भी कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक बात समझने की है कि अनुमानतः 60,000 परिवार उन दिनों विस्थापित हुए थे। जो राहत आयुक्त का कार्यालय है, रिलीफ कमिश्नर का, वहां 44,000 लोग, 44,000 परिवार रजिस्टर्ड है। मोटे तौर पर जो आंकड़ा है उसमें लगभग 2000 के आसपास मुस्लिम परिवार भी हैं, 1300 के आसपास सिख परिवार भी हैं। उनके आंख के भीतर झांक कर शायद लोगों ने नहीं देखा कि उनकी पीड़ा कितनी भयावह है। मैं
आपको भरोसा देना चाहता हूं, और जो कुछ मैंने समझा है अभी तक, कि 50% से ज्यादा, अनुमानतः 60% से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिनका निस्तारण बहुत शीघ्र हो सकता है। और एक अनुमान मैं बता सकता हूं आपको, किसी पड़ोसी ने ये जमीनें नहीं ली, कि वो लोग थे जो आतंकवाद से फल फूल रहे थे, ये वो लोग थे जो राजनीतिक गलियारों में रसूख रखते थे, इसमें से कई ऐसे लोग थे जो सरकार द्वारा वेतन पाते थे। आगे उस पर विस्तार से चर्चा नहीं, मैंने समय बताएगा कि इसमें प्रगति क्या हो रही है। जम्मू कश्मीर के बारे में आप में से अधिकांश लोग विद्वान हैं। मोटे तौर पर जो मैं समझता हूं, 2-3 बात मैं कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि उसको सुनने की जरूरत है। अगर आप आबादी की दृष्टि से देखेंगे तो 1.25 करोड़ या 1,30,00,000 कुल आबादी है। लल्लू सिंह जी बैठे हैं, अनेक लोग। वहां के बजट की अगर मैं चर्चा करूं तो पिछले साल देश की संसद ने 1,08,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था जम्मू कश्मीर के लिए। उसके 1 साल पहले की बात करूं तो मोटे तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए का बजट भारत की संसद ने स्वीकृत किया था, और उसके 1 साल पहले 90,000 करोड़। 3 साल का मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर इसको इस आलोक में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 23-24 करोड़ है, उसका बजट 5,45,000 करोड़ का है। बिहार, जिसकी आबादी लगभग 13 करोड़ है, उसका बजट 3 लाख करोड़ है। मैं और 10 राज्यों का नाम ले सकता हूं, जरूरत नहीं है। अगर आबादी के अनुपात में हम देखेंगे तो मैं मानता हूं कि देश के बाकी हिस्सों से या बाकी राज्यों की तुलना में ये पिछले 3 साल में नहीं, 1947 के बाद ये बजट एलोकेशन 8 गुना 10 गुना रहा है, अगर पर कैपिटा की बात हम करें। दूसरा तथ्य भी मैं आपको बताऊं, खासतौर से इस देश में ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में, जब श्रद्धेय वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, और मुझे लगता है कि आज देश उस स्थिति में है, अनेक क्षेत्र राज्यों से आप सब हैं, कि सामान्य रूप से ग्रामीण सड़कों का काम लगभग खत्म हो गया है, और 2022 मार्च में योजना बंद होने जा रही। पहले चरण में जब योजना शुरू हुई थी तो भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 1,000 आबादी के या उससे ज्यादा की आबादी के जो गांव हैं, उन गांवों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। जब देश के बाकी हिस्से के लिए आबादी का मानक 1,000 था, तो जम्मू कश्मीर के लिए 500 था, मैंने हिली स्टेट्स के लिए, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो। और जब 1,000 आबादी के गांव संतृप्त हो गए, सैचुरेट हो गए, तब भारत सरकार ने मानकों में बदलाव किया और तय किया कि अब 500 आबादी या 500 के ऊपर की आबादी के जो गांव हैं, उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ा जाएगा। और तब ये मानक जम्मू कश्मीर या हिली स्टेट्स के लिए 250 हो गया। अब जब मैं हिसाब लगा रहा था तो अभी 947 गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं, इतने बजट के बावजूद। दूसरा इस क्षेत्र की चर्चा मैं करना चाहूंगा, बिजली। विशेष रूप से 14 के बाद रिफॉर्म्स, तो जब वाजपेयी जी थे तभी रेगुलेटरी अथॉरिटी का बनना और बाकी शुरू हो गया था, लेकिन 14 के बाद बिजली के क्षेत्र में रिफॉर्म भी हुए हैं और काम भी हुए हैं। और अब जिस हिस्से से आते हैं, ग्रामीण अंचलों में भी 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिलती है देश के बाकी हिस्सों में, लेकिन जम्मू में 22 घंटे बिजली मिले ये व्यवस्था अभी नहीं हुई है। श्रीनगर में भी कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं है। किसी कार्यक्रम में मैं पिछले समय था, मैं जिक्र नहीं करूंगा, कोई पूर्व मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में थे, एक अस्पताल के उद्घाटन का अवसर था। मुझे गए हुए थोड़े दिन हुए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ये यहाँ बर्फ जब गिरती है या ठंड में बिजली की बड़ी दिक्कत होती है, और गर्मी में जम्मू के लोगों को बड़ी कठिनाई होती है, हमें तकलीफ बहुत होती है। कोई बड़ा काम हो गया था 2-3 महीने में, ऐसा मैं नहीं मानता। थोड़े छोटे मोटे बदलावों के कारण गुलमर्ग में एक विंटर फेस्टिवल होता है, इस साल भी होगा, तो वहां एक कार्यक्रम था। मैंने वहां एक बात कही कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी, और ये काफी दिन चला, वहां एक तकिया कलाम टाइप बन गया। मुझे लगता है कि अगर क्षमता की बात हम करें तो मोटे तौर पर वहां हाइड्रो पावर का पोटेंशियल बहुत है, 20,000 मेगावाट से कम नहीं है।
70 साल से ज्यादा हुए होंगे। अभी कुल उत्पादन क्षमता 3500 मेगावाट है। हमारी आवश्यकता ज्यादा है। दूसरा एक तथ्य और मैं मेंशन करूं कि मोटे तौर पर 6600 करोड़ की बिजली हम खरीदते हैं और 2632 करोड़ रुपया हमें प्राप्त होता है। देश में सबसे ज्यादा AT&T लॉसेस अगर कहीं हैं तो वो वही है। जम्मू में थोड़ा कम है, कश्मीर में और ज्यादा है। पिछले अगस्त 19 की बात यहां से कही गई है। उन 2 वर्षों में आज जम्मू कश्मीर इस स्थिति में है कि आने वाले 4 वर्षों में कम से कम 2000 मेगावाट के आसपास और 5 वर्षों में 3450 मेगावाट बिजली वहां बनने लगेगी। एक से एक बड़े उदाहरण मिलेंगे। 84 में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ सयालकोट के नाम से। वो हनुमान जी की पूंछ की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। 2020 में जब मैं रिव्यू कर रहा था तो मुझे लगा कि जिस गति से चल रहा है शायद 50 साल और लगेगा। तो उस फैसले को थोड़ा हम लोगों ने बदला है। जम्मू कश्मीर में कौल साहब को पता है कि 2014 के पहले 3 मेडिकल कॉलेज थे। एक श्रीनगर में था, उसी से निकल करके जम्मू में बना। एक स्किम्स बना वहां शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स के तर्ज पर। लेकिन उसके बाद 7 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें 5 आरंभ माने 5 में पढ़ाई हो रही है, उसमें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 2 इस साल शुरू हो जाएंगे और 2 नए एम्स। देश के बाकी किसी राज्य में 2 एम्स एक साथ मिला हो, मुझे लगता है किसी को याद नहीं होगा। अनेक लोग यहाँ बैठे हैं। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट। मैंने अगर हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो शायद उतनी कम आबादी पर जिस तरह का पिछले 4-5 वर्षों में इस सरकार ने वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद की है, शायद देश के किसी दूसरे राज्य को नहीं मिली होगी। बाकी वेलनेस सेंटर ये सब मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और अगल बगल के प्रांतों में भी जाने का अवसर मिलता रहा है। मैं कह सकता हूं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों से अगर मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर है। और जिस नई सुबह का इंतजार कौल साहब की किताब कर रही है, या मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर और देश के लोग कर रहे हैं, शायद उसी नई सुबह की दिशा में ये कदम पिछले कुछ वर्षों में उठे हैं। कोरोना का जिक्र हुआ मंच से, इसलिए मैं कोरोना का भी जिक्र करूंगा। पूरे देश में प्रकोप था और वहां भी था। लेकिन मुझे एक बात जरूर कहते हुए थोड़ा संतोष है कि जब पैंडेमिक पीक पर था तब भी कोई ऐसी तारीख नहीं आई कि वहां के किसी निवासी को ऑक्सीजन बेड न मिले, ऐसी स्थिति आई हो। सामान्य रूप से मैं कह सकता हूं कि ये स्थिति शायद देश के किसी और स्थान पर इक्का दुक्का रही हो। मुझे याद है जब पिछले साल मैं गया था तो मोटे तौर पर ऑक्सीजन जनरेशन की जो हमारी क्षमता थी वो 14,000 LPM के आसपास थी। वो भी कश्मीर डिवीजन में मोटे तौर पर 11,500 LPM थी, जम्मू डिवीजन में 23-24 थी। और जब पैंडेमिक आया, जब सेकेंड वेव पीक पर थी, तो हमारी क्षमता 50,000 LPM थी। आज 72,000 LPM है और सितंबर अंत तक 90,000 LPM हो जाएगी। तो मुझे खुद अब ये सोचना पड़ता है कि इस ऑक्सीजन का हम करेंगे क्या। कौल साहब ने अपनी किताब के चैप्टर 16 में नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का जिक्र किया है और उस चैप्टर का थोड़ा विस्तार में मैं जिक्र करना चाहूंगा। क्रिस्टोफर स्नेडन ने लिखा है कि हिस्ट्री इज नेवर स्टैटिक एंड सर्कमस्टांसेस कैन चेंज वेरी क्विकली। ये सही है। कोशिशें अड़ोस पड़ोस से और उनके षड्यंत्रों के कारण ये सच है कि वहां के काफी युवा नशे की लत में हैं। इस सच्चाई को स्वीकारने में मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हमने स्वयं ये बिगाड़ा है तो मुझे लगता है हम चाहे तो स्वयं ही उसे बना सकते हैं। और
मुझे लगता है कि किसी कवि ने कहा है कि पंछी बसेरा करने लौट आएंगे। वे आएंगे तब जब हम चाहेंगे। जिन कश्मीरी युवकों का मोह भंग हो गया है उन्हें एक नए सपने की तलाश है, लेकिन ये सपना मदहोशी में नहीं हो सकता है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि ये कोई नशा अपने आप नहीं फैला है। ये टेरर नारकोटिक्स टेरर का हिस्सा है और ये षड्यंत्र पूर्वक लंबे समय से आतंकवाद और नारकोटिक्स ये दोनों का चोली दामन का संबंध है। और मुझे लगता है कि इसका केवल एक पक्ष नहीं, दूसरे पक्ष को भी देखने की जरूरत है। और ठीक है, उसके सामाजिक पहलू हो सकते हैं, काउंसलिंग की जा सकती है, सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो दूसरा पक्ष है वो भी इससे कम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। कई कोशिशें पिछले दिनों हम सबने की हैं। मेरे जाने के पहले बैक टू विलेज करके एक कार्यक्रम पहले भी हुआ था। कोशिश हम सब भी कर रहे हैं कि वहां के युवाओं को वाजिब मंजिल पहुंचने में कैसे सहायता की जा सकती है। पिछली बार 2 अक्टूबर को बापू के जन्म जयंती पर वो कार्यक्रम शुरू हुआ था। उसमें कार्यक्रम में एक बात हमने कही थी कि हर पंचायत में जो भी हमारा विजिटिंग ऑफिसर जाएगा उसकी एक जिम्मेदारी होगी, कम से कम 2 नौजवान चिन्हित करे जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। आप सबको मालूम है कि 4295 पंचायतें हैं, तो एक मोटा मोटी आंकड़ा हम सबने लगाया था कि 9000 लोगों को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाएंगे, स्वरोजगार दे पाएंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले वर्ष 20,000 नौजवानों को हम सबने आर्थिक सहायता दी। और उसका जो दूसरा पक्ष है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, 4786 उसमें महिलाएं हैं, ये उसका एक दूसरा पक्ष। मुझे लगता है कि इस साल जो हमने लक्ष्य रखा है कि ऐसे 50,000 युवाओं को, और उसमें धनराशि निर्धारित है, अधिकतम 10 लाख रुपए तक अपना काम करने के लिए सरकार उपलब्ध कराएगी। और एक दिन एक कार्यक्रम में मैंने कहा कि ये 50,000 कोई हमारी सीमा नहीं है, अगर 1 लाख नौजवान भी इसके लिए आएगा तो निश्चित रूप से उसको धन उपलब्ध कराया जाएगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनकी सावधानी बरतनी पड़ती है। कई अभी यूथ क्लब हमने हर पंचायत में बना दिए, हर पंचायत में बन गया, और उन यूथ क्लबों को आर्थिक सहायता भी देते हैं। और मुझे लगता है कि एक प्रकार का अनोखा प्रयोग की कोशिश हुई है अवाम और सरकार के बीच। ये यूथ क्लब के हमारे जो मेंबर्स हैं ये कैसे ब्रिज का काम करेंगे, सरकारी योजनाएं किस तरह से जमीन पर ठीक से लागू होंगी, अधिकारियों के साथ उनका तालमेल और संवाद कैसा होगा। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूं तो 8 लाख विद्यार्थियों को वहां स्कॉलरशिप दी गई है पिछले साल, और अनेक कार्यक्रम इस दृष्टि से, हौसला, हिमायत, मुमकिन, परवाज, उम्मीद, तेजस्विनी, संकल्प जैसे अनेक नए कार्यक्रम हम सबने शुरू किए हैं ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से हम जोड़ सकें। यहाँ भ्रम बहुत लोगों को होगा, देश में भी है, कि वहां बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आंकड़े CMIP जारी करता है, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वो आंकड़े देखे हैं, मैं कह सकता हूं कि जहां हम बैठे हैं यहाँ से बेहतर स्थिति है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई राजनीतिक विवाद खड़ा हो, लेकिन अनेक राज्यों से अभी वहां बेहतर स्थिति है। और एक प्रधानमंत्री जी के कारण एक और स्कीम वहां सेहत के नाम से हमने शुरू की, आयुष्मान भारत से सब आप परिचित हैं। वो एक समाज के कुछ लोगों को स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का हेल्थ कवर देते हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरी जानकारी सही है तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा संघराज क्षेत्र है जहां हर परिवार को ये 5 लाख का हेल्थ कवर मिला हुआ है। साइंस और संस्कार, ये दोनों को समान रूप से कैसे प्रमोट किया जाए, मैं मानता हूं कि समाज के विकास के लिए आवश्यक है। जम्मू कश्मीर की संस्कृति के साथ हमारी सोच, मुझे लगता है कि वैज्ञानिक भी होनी चाहिए। और अभी कई क्रांतियों की बात हुई है, अब इंडस्ट्री 4.0 में अगर हम पिछड़ गए तो मुझे लगता है कि शायद उस गैप को भरने में हमें दिक्कत होगी। और मैं
सूचित करना चाहता हूं कि टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के उनके कोलैबोरेशन में 14 नए सेंटर इनोवेशन, इन्वेंशन, इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग के शुरू करने की कोशिश हुई है, जिसमें 2 फंक्शनल हो गए हैं, एक बारामूला में और दूसरा जम्मू में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा हो, रोबोटिक्स हो, 3D प्रिंटिंग हो, ऐसी तकनीक वहां का युवा सीखे, इसकी कोशिश तेजी से की जा रही है। जिस दिन मैं जम्मू के केंद्र का उद्घाटन करने गया था, तो IIT जम्मू के डायरेक्टर मेरे साथ थे। तो जो बात उन्होंने कही महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने कहा कि हमारे IIT के लैब में भी इस तरह के इक्विपमेंट नहीं है। 6 महीने के अंदर वहां एक दूसरा भी कल्चर है, सरकारी नौकरियों के प्रति बहुत आग्रह है। और ये आंकड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 4 लाख से ज्यादा वहां गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 90,000 के आसपास वो डेली वेजर्स हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी हैं। तो मोटे तौर पर 5 लाख के आसपास। अब इस बहुत लोगों को लगता होगा कि वो बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन अगर बिहार की फिगर में बताऊं कि 3,22,000 ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको शायद स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कई बच्चे मिलते हैं, मिलता रहता हूं। तो रजौरी के 2 बच्चे आए मेरे पास, नौजवान थे। पूछा पढ़ाई लिखाई क्या हुई? उन्होंने कहा बेंगलोर से एमटेक करके आया। मैं कर क्या रहे होगा? 4 साल से इंतजार कर रहा हूँ, कोई सरकारी नौकरी निकले जेई की या इसकी तो भरूं। हमने कहा भैया क्यों इंतजार कर रहे हो? तो ये माइंडसेट बदले, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं सरकारी नौकरी भी लोगों को मिले जो रिक्त पद हैं, और मिले नहीं बल्कि पारदर्शी तरीके से मिले। तो मोटे तौर पर 12,000 वैकेंसीज को भरने का काम हमने पूरा किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि कहीं कोई एक आदमी नहीं मिल सकता है जो कह दे कि मेरिट के आधार पर न हुआ हो, टैलेंट के आधार पर न हुआ हो, या किसी के कहने से किसी नियुक्ति हो जाए। वो समय वहां का बदल गया है कौल साहब। पूरी पारदर्शी तरीके से एग्जाम भी हुए हैं। और ये मैं समझता हूं कि कश्मीर के पिछले 70-72 सालों के इतिहास के लिए एक नई बात है। एक जगह कौल साहब ने लिखा कि वी हैव हैड अ लॉन्ग इंडस्ट्रियल हॉलिडे इन जम्मू एंड कश्मीर। यस, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन एक बात मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई है, और उसमें मैं एक बात जिक्र कहना मेरा लगता है कि आवश्यक है, जिसमें भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने विशेष रुचि ली है। और जिन जिन राज्यों में अभी हाल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, सबका अध्ययन करके, स्टेक होल्डर से चर्चा करके कि कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, उनका समाधान करने की कोशिश की है। और 28,400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है। जब योजना बनी थी, मैं भी उसका भागीदार था। चर्चा के दौरान गृहमंत्री जी ने एक बात कही थी, और कॉमर्स डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर भी थे, हमारे यहाँ के भी लोग थे। तो एक अनुमान हम लोग कर रहे थे कि 25,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आने वाले 1.5-2 साल में जम्मू कश्मीर में आएगा। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि एक दिन हम आप साथ कार्यक्रम बना के चलेंगे, 2 दिन मुंबई रहेंगे, 10-15 हजार करोड़ तो वहीं से ले आएंगे। जो रिफॉर्म्स हमने किए और भारत सरकार के कारण किए, मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में 25,600 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आ चुके हैं, बिना किसी बहुत प्रयास के। और उसका दूसरा पक्ष बताना जरूरी है, जिसमें 12,000 करोड़ के प्रस्ताव कश्मीर वैली में हैं, 12,200 करोड़ के, और बाकी जम्मू रीजन में। मोटे तौर पर ये प्रस्ताव आ गए हैं। ये वो प्रस्ताव हैं जिन्होंने फीस जमा की है, जिन्होंने अपनी DPR सबमिट की है। और अब हमने थोड़ा गति को स्लो किया है। लैंड बैंक हमारे पास 6,000 एकड़ था, 6,000 एकड़ अभी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दी गई है। और एक नई पॉलिसी भी बनाई है प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए। अब ये आंकड़ा जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ये वो आंकड़ा है जिन लोगों ने सरकारी जमीन के लिए आवेदन किया है। उसका अंदाज हमें नहीं है जिन लोगों ने खुद जमीन खोजनी शुरू की। ऐसे लोग भी मिलते हैं, वो आंकड़ा मैं आगे बता पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है
कि जो मैं अनुमान कर पा रहा हूं, संभवतः कम से कम 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले 1.5 वर्ष में जरूर आएगा जम्मू कश्मीर में। रोजगार भी मिलेगा। पॉलिसी में हम लोगों ने कुछ जरूर ऐसी बातें करी हैं। सामान्यतया जहां जहां इंसेंटिव दिए गए वहां इंडस्ट्री कम आई, इंसेंटिव ज्यादा लिए लोग। मैं किसी राज्य का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। इंसेंटिव के लिए लोग गए, इंडस्ट्री लगाने नहीं गए। खामियों का इस्तेमाल करना हम लोग ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं दुनिया के बाकी लोगों से। तो जो खामियां थी उनका फायदा उठाने का काम किया गया। इस बार उसकी गुंजाइश जरा थोड़ी कम कर दी गई है। इस बार जीएसटी में ही सबसे ज्यादा इंसेंटिव दिया है, 300% का। जीएसटी तभी लगेगी जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, जब प्रोडक्शन होगा, तो गुंजाइश कम कर दी गई। अपने किताब के पेज नंबर 286 पर कौल साहब ने लिखा है, फूड प्रोसेसिंग विल नॉट ओनली एड टू सस्टेनेबिलिटी बट ऑल्सो क्रिएट मोर जॉब्स। कौल साहब, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि फूड प्रोसेसिंग के 51 प्रस्ताव अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। और आप सब को मालूम है कि सैफरन का जिक्र यहाँ हुआ है, केसर का, वॉलनट, एप्पल, आलमंड, स्ट्रॉबेरी, चेरी, मैंने 10-20 नाम मैं और ले सकता हूँ। वहां की जो क्लाइमेट है वो निश्चित रूप से अव्वल है। और हॉर्टिकल्चर के अलग अलग क्षेत्रों में गति देने के लिए भी कई नए काम वहां शुरू हुए हैं। मिल्क डेफिसिट स्टेट थी। मैं सभागार में जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इस साल अब दूध की कमी वहां नहीं रहेगी। अगले साल हम मिल्क सरप्लस स्टेट हो जाएंगे। हाई डेंसिटी प्लांटेशन आप में से अनेक लोग सुने होंगे। उसके कारण पैदावार 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है। अभी तक 300 हेक्टेयर हाई डेंसिटी प्लांटेशन नेपाल का हुआ है। यहाँ मीडिया के लोग हैं इसलिए मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि साहब भारत सरकार ने या वहां के प्रशासन ने लैंड लॉज में बड़ा बदलाव कर दिया है। मैं 1-2 उदाहरण देना आवश्यक समझता हूँ। लैंड लॉज बदले हैं और मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि बदला है किसानों के हित के लिए बदला, वहां के लोगों के हित के लिए बदला है। अब एक वहां भूमि कानून था, एक लैंड लॉ था कि अगर आर्चर्ड लगाना है, आपको बगीचा लगाना है सेब का, तो रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन लेनी है, और काटना है तो भी परमिशन लेनी है। हाँ, इसको मैंने जरूर बदल दिया हमने, और ये कर दिया है कि किसी को बगीचे लगाने के लिए, आर्चर्ड लगाने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। काटने के लिए जरूर परमिशन चाहिए। 4 कैनाल 8 कैनाल का 1 एकड़ होता है। कौल साहब ठीक कर रहा हूं मैं ना? 4 कैनाल से जिसके पास कम जमीन है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। इसको भी बदल दिया है कि जिसके पास 1 कैनाल है, आधा कैनाल है, वो भी कर सकता है। गरीब आदमी क्यों नहीं अपनी आय अधिक कर सकता है? इस तरह के जो कानून थे उनको बदला है, और मैं कह सकता हूं कि वहां के लोगों के हित के लिए बदला है। टूरिज्म का बड़ा जिक्र होता है। जुलाई महीने में 10,52,000 लोग इस बार जम्मू कश्मीर में आए, और अगस्त की जो फिगर है 11,28,000 की। मुझे लगता है कि शायद पिछले 6-7 साल में अगर आंकड़े उठाएंगे तो 4 गुना 5 गुना से ज्यादा लोग पिछले कुछ महीनों में आना शुरू हुए हैं। सिल्क का भी जिक्र हुआ है, मल्टी डायमेंशनल टूरिज्म का भी किताब में जिक्र है। आप कौल साहब जानते हैं बेमिना में एक सिल्क की फैक्ट्री थी सरकारी, 2014 के फ्लड में बह गई थी। भारत सरकार ने पैसा भी दिया लेकिन नहीं बन सकी थी। अब वो बन गई है, वहां काम शुरू हो गया है। जम्मू का काम पिछली बार ही शुरू हो गया था। पश्मीना का भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहली बार तय किया गया है, और मुझे लगता है कि टूरिज्म की दृष्टि से भी जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है, गुलमर्ग, पहलगांव, सोनमर्ग, इसके अलावा लोग जानते ही नहीं है। तो ऐसे डेस्टिनेशंस को कैसे, और जम्मू रीजन में भी बहुत, जम्मू के क्षेत्र में भी मैं समझता हूं कि अत्यंत सुंदर और अद्भुत स्थल है, लेकिन लोग नहीं जानते। कोशिश अब ये जरूर है कि वो 1 साल में नहीं हो सकता है। आप में से अधिकांश लोग सहमत होंगे, किसी भी स्थान पर जाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और मैं आभारी हूं भारत सरकार का, विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री जी का, तो सामान्य रूप से जो भी बात या जो भी आग्रह हम लोग करते हैं वो पूरी तरह से उसको पूरा कराने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसका जरूर ध्यान रखा जाएगा कि पर्यावरण के संतुलन के साथ ही इन कामों को आगे बढ़ाया जाए।
एक बात अपनी किताब में करप्शन का जिक्र कौल साहब ने किया है। मोटे तौर पर मैं मानता हूं कि करप्शन कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो सामान्य रूप से मोटे तौर पर विचार करिए तो जहां आदमी है वहीं करप्शन की गुंजाइश है। अधिकांश गुंजाइश हुई है, मैंने लोग ईमानदार भी हैं, मैं सब पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जितना टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे मुझे लगता है वही सबसे बड़ा अस्त्र हो सकता है करप्शन रोकने का। जीएफआर जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, बीम्स, ये पूरी तरह से 100% लागू कर दिए गए। जब मैं पहुंचा था तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी सामाजिक या राजनीतिक जीवन में काम करने के कारण बहुत सारे लोग परिचित हैं देश भर के कोने कोने से। कभी न कभी किसी मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री का या किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का फोन आता था कि फला आदमी ने वहां काम किया, उसका पेमेंट बकाया जरा करा दीजिए। मैं भी नया था, मुझे मालूम नहीं था, तो मैं कहता था भेज दीजिए, देखते हैं। बात करता था, जब पता करने की कोशिश करने लगा तो बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, बिना फाइनेंशियल सैंक्शन और बिना टेंडर के काम हो गए। उसके बाद मैंने जवाब बदल दिया। अब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति फोन करता है तो मैं एक लाइन में जवाब देता हूं कि अगर उसका काम का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, फाइनेंशियल सैंक्शन है, टेंडर हुआ है तो भेज दीजिए, करा देंगे। अब उसमें से 99% लोग लौट के नहीं आते हैं। तो ये कोशिश हम लोगों ने की है। अब मोटे तौर पर कुछ फैसले कर दिए हैं कि कोई काम बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के नहीं होगा, बिना फाइनेंशियल सैंक्शन के नहीं होगा, बिना ये टेंडरिंग के नहीं होगा। और हर गांव में काम चल रहा है, कितने पैसे जा रहे हैं इसका प्रतिदिन हिसाब वहां का आम आदमी भी, गांव का नौजवान भी कर सके, अपने मोबाइल पर देख सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। और भुगतान की भी एक व्यवस्था मुकम्मल कर दी गई है कि काम की जियो टैगिंग और लाइव फोटोग्राफ जब चढ़ेगा तभी ट्रेजरी बिल लेगी, नहीं तो बिल ही नहीं लेगी। 21,943 कोरोना के बावजूद परियोजनाएं हम सबने पिछले साल पूरी की हैं। मैं किसी साल से उसकी तुलना नहीं करना चाहता। और मैंने पावर की बात कर ली है। एज नंद ऋषि had suggested, he who is here is also there, and for it is he who holds a home everywhere. उसी भावना के साथ समाज के सभी तबकों तक विकास की किरणें पहुंचे, उसकी कोशिश की जा रही है। कौल साहब ने डल लेक को और जंगलों की बात की है। द मैग्निफिसेंट डल लेक नाउ ग्रोमिंग लाइक ए sick old man suffering from some terminal disease. अब काफी लंबे समय से डल स्वच्छ हो रही है। भारत सरकार ने भी काफी प्रयास किया है, न्यायालयों ने भी काफी प्रयास किया है, वहां भी प्रयास किया है। एक दिक्कत मुझे लगता है कि आप सब महसूस करते होंगे, हम काफी आगे बढ़े हैं विज्ञान में, अनुसंधान में, लेकिन अभी भी हमारी दिक्कत एक है कि एक समस्या आप चुन करके और खोजें कि एक व्यक्ति हमको मिल जाए जो इस समस्या का मुकम्मल समाधान बता दे, तो बात करने वाले बहुत मिलेंगे, पर्चे लिखने वाले भी बहुत मिलेंगे, ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इस तरह के लोग बिरले खोजने से मिलते हैं। मुझे भी लोग मिलते हैं। एक नया फैशन हो गया जब से ये कोई भी प्रेजेंटेशन बना लीजिए, पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, आपसे अच्छा मैं बोल दूंगा। मैंने आप इतिहास पढ़े होंगे, लेकिन मैं बिना पढ़े सब कुछ बोल सकता हूं, तो प्रेजेंटेशन लेके आ जाएंगे साहब। कई लोगों से मैं मिला, मैंने कहा भैया मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, इतना समय है मेरे पास, मुझे एक बात बताओ, कितना पैसा लगेगा, कितने साल में होगा, लेकिन काम होने के बाद अब उसमें ये नहीं रहना चाहिए कि ये गड़बड़ी रह गई। ऐसा आदमी मुझे नहीं मिला। पिछले 1 साल में मैंने बड़ी तलाश की, अंतोगत्वा एक व्यक्ति मिले मुझे, नाम मैं नहीं लूंगा। 13-14 साल वर्ल्ड बैंक में खासतौर से वाटर बॉडीज पर ही उन्होंने काम किया था। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और वो नाम भी मुझे प्रधानमंत्री जी ने ही सजेस्ट किया था कि उनसे आप संपर्क करिए। उन्होंने एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाई, काफी अध्ययन किया। और मैं कहना चाहता हूं कि डल अकेले में कुछ नहीं है। अगर केवल डल पर काम होगा तो वो काम नहीं हो सकता है। इसलिए डल, झेलम, नगीन, उलर,
ये सबको मिला करके एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मोटे तौर पर बन गई है। मैं तारीख नहीं बता सकता, प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोग चाहते हैं कि विस्तृत उस पर चर्चा हो जाए, और ये मैं आश्वस्त हूं कि चर्चा के बाद स्वीकृति जरूर होगी और उसी दिशा में काम होगा, ये कोशिश जरूर की जाएगी। विकास और पर्यावरण ये एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना इनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। फॉरेस्ट का जिक्र बहुत है, पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा नए पेड़ हमने लगाए थे। इस साल 1,30,00,000 लगाए जा रहे हैं और उससे ज्यादा ही लगेंगे, कम नहीं लगेंगे। इसके परिणाम कुछ जरूर आ रहे हैं। फॉरेस्ट और ट्री कवर हमारा बढ़ करके 56% हो गया है। नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे तो 24.55 था। पहले से भी जम्मू कश्मीर में कवर ज्यादा था और वहां के लोगों से भरोसा है, वहां के लोगों को जरूर हम सब ने दिया है कि जो प्राकृतिक संपदा है उसे बचाए रखने और उसे मजबूत करके आगे आने वाली पीढ़ी के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं किताब पर ज्यादा बोलूं मुझे लगता है कि उचित नहीं है, नहीं तो एक लेखक के साथ गुस्ताखी होगी। मैं समझता हूं कि देश विदेश में रह रहे सभी हिंदुस्तानी भाई बहन और विदेशी लेखक भी इसे पढ़ें। जम्मू कश्मीर पर शोध कर रहे स्कॉलर के लिए तो ये मस्ट रीड है। और हब्बा खातून ने लिखा है कि द डिस्टेंट मीडोज आर इन ब्लूम, हैव यू नॉट हर्ड माई कॉल। हमें सुनाई पड़ती है कौल साहब, आपकी आवाज आपके किताब के एक अल्फाज में सुनाई पड़ती है। थैंक यू फॉर राइटिंग दिस वंडरफुल बुक। और मैं आश्वस्त हूं कि आने वाली पीढ़ियां भी आपकी इस महान कृति की ऋणी रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। माननीय मनोज सिन्हा जी, प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, रमेश गौड़ जी और आदरणीय जवाहरलाल कौल साहब, सभागार में मैं देख रहा हूँ आदरणीय उषा जोशी जी उपस्थित हैं। ये सभागार धन्य हो गया है उनकी उपस्थिति से। सभागार में राजकुमार भाटिया जी हैं, लल्लू सिंह जी हैं, मैं देख रहा हूँ संजय सिंह हैं, मनोज मिश्र जी हैं और ऐसे तमाम मित्र हैं यहाँ। इस पुस्तक के बारे में बहुत चर्चा हुई है और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं लेखक के बारे में बताऊंगा आपको। पुस्तक के बारे में मनोज सिन्हा जी ने जितना विस्तार से बताया है और यही हमारी उम्मीद भी थी। इसीलिए जब ये पुस्तक छप करके आई और जिस दिन मुझे मिली तो मैंने रात को मनोज सिन्हा जी को फोन किया और हमने कहा कि अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो इस पुस्तक का लोकार्पण आपके हाथों होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 8 तारीख को मैं सुबह आ जाऊंगा, आप 4 बजे रख लीजिए। और इस तरह से ये कार्यक्रम बना। मुझे याद आ रहा है कि कौल साहब की एक पुस्तक प्रभास जी ने कौल साहब से लिखवाई थी, पत्रकारिता का बाजार भाव। पत्रकारिता के विद्यार्थी आज भी अगर उस पुस्तक को पढ़ें तो उसमें से बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी। और प्रभास जी ने, सच्चिदानंद जोशी जी को याद होगा, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के
सौजन्य से भोपाल के विधानसभा में, जो पुराना विधानसभा है, उसमें लोकार्पण करवाया था और पत्रकारिता के दिग्गज मंच पर थे। मुझे लगा कि इस पुस्तक का भी लोकार्पण पहले यहाँ हो। मैं जानता हूँ कि इस पुस्तक का लोकार्पण जगह जगह होगा, क्योंकि कौल साहब का संबंध जम्मू कश्मीर से लेकर चेन्नई तक है। इनके बारे में एक पता नहीं सच है या मजाक है, बनवारी जी एक इनके बारे में किस्सा सुनाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो किस्सा मैं आपको बताऊं। ये अपनी पत्नी के साथ चांदनी चौक गए और उनको भूल गए और चले आए इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग। इनकी पत्नी खोजती रही। जब उनको मालूम पड़ा कि वो कौल साहब इधर उधर नहीं दिख रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस बिल्डिंग आई और पता चला कि हाँ, कौल साहब आ गए वापस। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कौल साहब भुलक्कड़ आदमी है। लेकिन ये किताब बताती है कि नहीं, कौल साहब जो जरूरी है उसको नहीं भूलते। और इसलिए मैं ये कहूंगा, अभी कुमार संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, अभी आप रुकिए। अच्छा, तो ये कुमार संजय सिंह की टिप्पणी आपने सुन ली है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो ये कि ये किताब 84 साल से लिखी जा रही थी। इस किताब की जो सबसे मुझे लगता है, मैंने इस किताब को जब देखा तो मुझे लगा कि ये किताब कोई 2-4 महीने का लेखन नहीं है। ये किताब 84 साल से लिखी जा रही है। मैंने इनसे पूछा, कौल साहब से, कि आपने ये किताब क्यों लिखी। ये नहीं पूछा कि क्या लिखा, मैंने इनसे सवाल पूछा कि आपने ये किताब क्यों लिखी, और उसकी उन्होंने कहानी बताई, जो अभी अंग्रेजी में वो उन्होंने पढ़ा, उसमें कुछ बातें आ भी गई हैं। जो बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो इससे थोड़ी अलग है। आप में से बहुत लोग होंगे, और मुझे लगता है कि सब लोग होंगे, जिन्होंने कठोपनिषद का नाम सुना होगा। आप जानते हैं कठोपनिषद क्या है? नचिकेता और यमराज की जो बातचीत है वही कठोपनिषद है। और ये पुस्तक कश्मीर पर कठोपनिषद है। कैसे? तो उसका किस्सा सुनाता हूं आपको। कोरोना में ऑक्सीजन कौल साहब का गिरने लगा और पारिजात कौल का फोन आया, इनके बेटे जो दूरदर्शन में है, कि ऑक्सीजन गिर रहा है, कम हो रहा है। कौल साहब को एम्स झज्जर में, जो नजदीक था इनके निवास के, वहाँ हम लोगों ने दाखिल कराया। इनके आसपास मौत का साया मंडरा रहा था। इधर के लोग भी मर रहे हैं, उधर के भी लोग मर रहे हैं। और आप जानते हैं, हम लोगों ने जब मोबाइल आया था, एक बार हरिद्वार में हमने एक वो किया, राष्ट्रीय
सेमिनार किया। कौल साहब उसकी तैयारी में हरिद्वार गए, तो हम लोगों ने कहा कि कौल साहब एक मोबाइल ले लीजिए ताकि हम लोग चाहें तो आपसे बातचीत हो जाए। तो कौल साहब ने मोबाइल स्वीकार कर लिया और मोबाइल को झोले में रख देते थे। हम फोन कर रहे हैं, कोई संपर्क नहीं। जब वहां हरिद्वार पहुंचे तो कौल साहब से पूछा कि कौल साहब आपसे बातें नहीं हो पाती, तो कहने लगे कि वो मोबाइल तो झोले में रखा है। लेकिन झज्जर के अस्पताल में पारिजात ने इनको मोबाइल दिया और ये मोबाइल पर बात करते थे, जिनका भी फोन जाता था। और जानते हैं आप, उस मोबाइल का इस्तेमाल इन्होंने अपने प्रकाशक से पता नहीं कितनी बार यह पूछने के लिए किया कि ये किताब कब छप कर आ रही है। तो जो मैंने कहा कि नचिकेता यमराज के पास पहुंचा और जीवन का जो परम सत्य है उसने यमराज से पूछा, और जवाहरलाल कौल भी झज्जर के अपने बिस्तरे से यमराज से पूछ रहे हैं और यमराज से कह रहे हैं कि रुक जाओ, ये पुस्तक छपने दो, मैं जीना चाहता हूं। और जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि कौल साहब आपकी किताब छप रही है। तो कौल साहब ने कहा कि मैं जीना चाहता हूं। और सचमुच डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि कौल साहब शतायु हों। तो जो व्यक्ति यमराज को हराकर इस सभागार में उपस्थित है उसका नाम जवाहरलाल कौल है। और ये पुस्तक झज्जर जाने से पहले लिख दी गई थी। तो मैं उस जवाहरलाल कौल के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए अपनी बात पूरी कर रहा हूं। धन्यवाद सर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक वक्तव्य के लिए। अब हम कार्यक्रम के अंत में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से, प्रज्ञा संस्थान की तरफ से अपने अतिथियों को धन्यवाद करते हैं। मैं अब हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय उपराज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को कि सर आपने इस पुस्तक का विमोचन ही नहीं किया, हमें आपके द्वारा किए जा रहे सराहनीय प्रयासों की भी जानकारी दी, जो बहुत ही प्रेरणादायक है हमें सभी भारतीयों के लिए। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किताब के लेखक श्री जवाहरलाल कौल जी को कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि उस पुस्तक का विमोचन हम आप सभी की उपस्थिति में कर सके। धन्यवाद सर।